দেখাতে বলবো যে এটা কয়েকদিন আগের একটা ছবি। এই ছবিটা দেখুন, এই যে ছবিটা এখান থেকে কিন্তু খুব স্পষ্ট যে ভারত কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্যাম্প করে ফেলেছে এবং বাংলাদেশকে ঘেরার একটা প্ল্যানিং একদম রেডি। আমরা ম্যাপের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করছিলাম যে কোন কোন জায়গা দিয়ে আসামের কথা বারবার করে উঠে আসছে, কারণ বাংলাদেশ থেকে দূরত্ব অনুযায়ী কোন জায়গায় কত, শিলিগুড়ি कॉरिडोर যেটা সবথেকে কম দূরত্ব সেটা হচ্ছে 22 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि अब बांग्लादेश का रंगपुर का जो रीजन है, रंगपुर का जो एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, 22 किलोमीटर का ये खुला रास्ता, और कहा जा रहा है कि जिस चिकन नेक, जिस 7 सिस्टर्स के ऊपर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बड़ा, वो कहते हैं ना, मान है, उसके ऊपर बांग्लादेश कहता है कि हम इसके जरिए यानी 7 सिस्टर को तोड़ सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अब ये किस्सा ही बांग्लादेश तमाम करने जा रहा है, हिंदुस्तान बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि अब जो ये रंगपुर है इसको ही हम कैप्चर कर लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, और उसके बाद जो चिकन नेक वाला जो मसला है वो ही खत्म हो जाएगा। और ये इंडियन आर्मी है, ये वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है दोस्तों, वो कह रहा है कि इंडियन आर्मी इसके ऊपर अपने तैयारे, विमान, एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, कभी उड़ाती है कभी उतारती है, यानी उस एरिया के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, चिकन नेक वाले एरिया पर। और बांग्लादेश की जो उसकी इंडिया की जो आर्मी है वो रंगपुर एरिया में वो लगभग वो कह रहे हैं कि इन्होंने कैप्चर कर रखा है, बस थोड़ी देर बाद ये कैप्चर कर लेंगे, कुछ मतलब महीनों बाद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। তো দেখাতে বলবো যে এটা কয়েকদিন আগের একটা ছবি। এই ছবিটা দেখুন, এই যে ছবিটা এখান থেকে কিন্তু খুব স্পষ্ট যে ভারত কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্যাম্প করে ফেলেছে এবং বাংলাদেশকে ঘেরার একটা প্ল্যানিং একদম রেডি। আমরা ম্যাপের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করছিলাম যে কোন কোন জায়গা দিয়ে আসামের কথা বারবার করে উঠে আসছে, কারণ বাংলাদেশ থেকে দূরত্ব অনুযায়ী কোন জায়গায় কত, শিলিগুড়ি করিডোর যেটা সবথেকে কম দূরত্ব সেটা হচ্ছে 22 কিলোমিটার। সুতরাং আমি এই জায়গাটায় কর্নেল চৌধুরীর কাছে যাব। তাহলে এই যে ভারতের দিকে এতদিন নানা রকম কথাবার্তা ছুড়ে আসছিল, কখনো টার্কি ড্রোন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে এই 22 কিলোমিটারটা কি এবার যদি ভারত কেটে দেয় তাহলে তো আমাদের সঙ্গে জুড়ে যাবে বাংলাদেশ যে কোনো মুহূর্তে। তাই কি ওয়াকারের এতটা ভয়? না, ওয়াকার ইউনুস ওখানকার সেনা অধ্যক্ষ, উনি নিজের মতন করে প্ল্যান করছে এবং পুরো প্ল্যানিংটা ওনার থেকে বেশি আইএসআই করছে। এবং আমরা যেটা আপাতত জানতে পেরেছি, সিআইএ তুরস্কর যে এমআইটি আছে কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিতে, তার সঙ্গে নাশকতার যে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন আছে তারা ভারতের বিরুদ্ধে, ভারত বিদ্বেষে একটা বড় প্ল্যান করতেই পারে, সেটা ওদের দেশ, ওরা যা ইচ্ছে করতে পারে। সেই জায়গায় ভারত আমাদের যেভাবে স্ট্র্যাটেজিকভাবে, ট্যাকটিক্যালভাবে যেভাবে এগোয়া দরকার, ভারতের সামরিক বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ঘিরে থাকার দরকার, সেটা আমরা অলরেডি দিল্লি সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এবং এই যে শিলিগুড়ি করিডোর, যেহেতু আমরা জানি এটা আমাদের সেন্সিটিভ এরিয়া, তো আমাদের নেসেসারি এখানে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। এবং ওরা যার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখাচ্ছে যে লালমনিরহাট এত বড় একটা আমি এয়ারফোর্স হ্যাঙ্গার করবো, যেখানে এত বড় বড় ঘাস গরু চড়তো কিছুদিন আগে, এই জামাতের গরুগুলো যেগুলো এখন আমাদের গালাগালি দিচ্ছে, আমাদের কথা শুনে, এই জামাতের গরুগুলোই গরু চড়াতো ওখানে, সেই জায়গায় একটা হঠাৎ হ্যাঙ্গার বানিয়ে ফেলেছে একটা বিদেশি কোম্পানি। নিজেদের বাংলাদেশে কোম্পানি নেই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তান এবং চীন থেকে ডাকতে হয়েছে, আউটসোর্স করতে হয়েছে, তাদের টেন্ডার দিয়েছে, তারা একটা হ্যাঙ্গার বানিয়েছে। চীন কিছু ফাইটার এয়ারক্রাফট রাখবে, কারণ পাকিস্তানেরও এয়ারক্রাফট নেই, বাংলাদেশে তো নেই, সবাইকে ভাড়া করে আনতে হয় অথবা কিনে আনতে হয়। সে একইভাবে সেইভাবে করেছে। ভারত আজকে স্বনির্ভর, ভারতের সামরিক বাহিনী 4th গ্লোবাল মিলিটারি ইন্ডেক্সে 4th মাইটিয়েস্ট আর্মি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো ভারত এক্সারসাইজ করছে, ভারত নিজের যে কোর হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন যে তিস্তা প্রহার, এই শিলিগুড়ি করিডোরের বিভিন্ন জায়গায় এক্সারসাইজ আমরা করছি। আমরা রংপুর লালমনিরহাটকে ঘিরে ফেলছি
এবং এটা শুধু আমি একটা দিক দেখালাম, একটা দিক, কারণ শিলিগুড়ি করিডোরটাকে আমরা স্ট্রেনথেন করছি, কারণ আমাদের যে সবচেয়ে কম বিচ সেটা 22 কিলোমিটার। সে কেউ না কেউ ভাবতেই পারে যে 22 কিলোমিটার কেটে দিতে পারে, কেউ ভাবতে পারে, তারা যে ভাবনা এইটা কেন ভাবছে না যে আমরা রংপুরকে কেটে দিতে পারি। এই 22 কিলোমিটারটা আমরা 160 কিলোমিটার করে, যে 22 কিলোমিটারের জন্য एत কথা, सेटा 160 किलोमीटर हो जाए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल का मीडिया किस तरह से बातें कर रहा है कि देखें अब चिकन नेक, उस चिकन नेक को ही अपने साथ मिला लिया जाएगा जिस चिकन नेक के ऊपर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पॉलिटिक्स कर रहा था लगातार। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक ऑपरेशन इंडिया की तरफ से लॉन्च कर दिया जाएगा जिस ऑपरेशन का नाम होगा चिकन नेक ऑपरेशन। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन ये जो ऑपरेशन है वो कह रहे हैं कुछ डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कुछ एरिया को, रंगपुर का जो एरिया है उसको हमने अपने साथ मिलाना है। बांग्लादेश की आर्मी इस वक्त पूरी तौर पर तैयार है, भरपूर उसने तैयारी कर ली है ये चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने साथ मिलाने के लिए। ये दोस्तों कह रहा है वेस्ट बंगाल का मीडिया, और वो कह रहे हैं कि अब जो किस्सा है वो तमाम कर दिया जाएगा प्रोफेसर यूनुस का। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है या सिर्फ बातें लगती हैं? मैं तो ये कहूंगा कि भाई पहले आप 1 इंच जमीन आप लेकर तो देखें पहले बांग्लादेश से, फिर ये बात की बातें करना। ये रंगपुर इतना बड़ा एरिया आप कैसे कैप्चर करोगे? वो कह रहे हैं कि हमारे विमान, हेलीकॉप्टर इसका जायजा ले रहे हैं उस जगह का। शेख हसीना, उसका नरेंद्र मोदी की पिक्चर, फ्लैग इंडिया का वो पिक्चर वो कह रहे हैं कि वो लगाकर फ्लैग पर वो दिखाया जा रहा है कि हम रंगपुर को कैप्चर कर लेंगे, यानी इंडियन, ये कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल का मीडिया ये कह रहा है। ठीक है, सपना देखें, कोई हर्ज नहीं है सपना देखने में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप उनको शेख हसीना वापस करो, जो बांग्लादेश इस वक्त मांग कर रहा है कि भाई शेख हसीना वापस करो, क्योंकि उसके खिलाफ जो केस है सजाए मौत का, और उसको सजा हो चुकी है, और वो अब चाहिए बांग्लादेश की अदालत को। तो मेरे ख्याल में पहले तो भाई आप उनको जवाब देना, फिर बांग्लादेश आपसे निपटेगा। और ये जो आप कोशिश कर रहे हैं हमले की, ये आप कर दिखाएं, फिर बातें करना, लगेगा आपका पता। बांग्लादेशियों ने आपको मार मार कर आपकी ऐसी चमड़ी उतार देनी है, आपको पता ही नहीं चलना कि हमारे साथ हुआ क्या है। दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।